If you get stuck in this law, it's going to take you years to get out of it. एक बड़ी पुरानी कहावत है, भारत में चोरी सारे करते हैं, जो पकड़ा जाए वो चोर कहलाता है। आपको कोशिश करनी है कि आप पकड़े ना जाए। अगर आप पकड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं आईटी एक्ट में फंस जाते हैं, तो ये बात सुनिश्चित है कि कई महीने नहीं कई साल लग जाएंगे और आपके भविष्य की जो दिशा निर्धारण है वो काफी हद तक बदल सी जा सकती है आने वाले कुछ समय में। तो कई सारे केसेस हैं, कई सारे इश्यूज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आई थिंक रोशनी, आर यू एबल टू सी द पावरपॉइंट? ओके, थोड़ा बहुत है, तो आई ट्राई टू से आई गॉट सम ऑफ दीज केसेस फॉर यू, यू कैन हैव अ लुक एट दिस। सऊदी अरेबिया में दो लोगों को अभी एक सजा मिली है, एक को 8 साल मिली है, एक को 10 साल मिली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 ट्वीट्स लिखे थे जिसको सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि इट्स एन एक्चुअली a war against the nation. Now, this is happening across, whether it's Egypt, whether it's anywhere else. Twitter is now the de facto medium. But Twitter is also now the favorite vomiting ground. In fact, I find that Indians today are undergoing a huge new revolution. This is the Indian vomiting revolution. Everybody in India is vomiting. Vomiting information about their personal, professional, social lives and the like. That being so, it's very important to understand what could be the legal ramifications if what you vomit is actually going to be made available tomorrow or not. Now, a couple of weeks back, they used a smart fridge for the purposes of hacking into a network. Imagine, हम सोचते थे फ्रिज से तो चीजें ठंडी होती हैं, या फ्रिज से नेटवर्क को हैक किया गया और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी निकाली गई। इसके ठीक कुछ हफ्तों बाद साउथ कोरिया में एक अवन का इस्तेमाल करके एक ह्यूज नेटवर्क पर बेइंतहा स्पैम भेजा गया। सो जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं तो बहुत स्पष्ट बात है कि हमारे आसपास बहुत तेज रफ्तार से चीजें बदल रही हैं और हमको इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा। इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर, इट्स अ डिफरेंट पैराडाइम ऑफ व्हाटएवर नेचर। ओके, टुडे फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु आर ऑन टेक्नोलॉजी, दिस इज अ लाइफलाइन। In fact, somehow we tend to get fidgety if we don't use our mobile. कॉल नहीं आती तो देखते हैं, अरे फोन ठीक ठाक चल रहा है, एसएमएस नहीं आया, सोशल मीडिया मैसेज नहीं आया, क्या बात, तबीयत ठीक है? You know, this is the fundamental question we ask ourselves. But we have become so much dependent on these devices without really realizing the legal ramifications of these things, which I think you guys really need to be doing this. This happened, something on the left happened 2001, on the right happened 2008. That happened in the World Trade Center. This happened right in our own country, in Mumbai. But one thing was very clear. Cyber terror is now an integral part of our day-to-day problems. And it's not that somebody dedicated cyber terrorists would be working. For all you know, your system could be compromised. And if your system is compromised and you get caught, you should be tightening your belts, because under the Indian cyber law, it gets you life imprisonment and fine. Anything to do with cyber terrorism, even if your system has been unauthorizedly accessed and used for cyber terrorist activities, you are in a huge problem. Actually, you know, when one looks at the totality of things, one is finding a new world. Internet made geography history. There was this new boundaryless medium. And now governments have started putting up artificial boundaries onto the internet per se. So there are bound to be legal challenges, which you think you need to be far more careful now, at least in this decade, than what people were in the last decade. Okay. A lot of cases have happened. We've seen this case pertaining to theft of data from an agricultural equipment manufacturing company. Typical case. Now somehow Indians believe कि कंपनी का माल या कंपनी का डेटा जो है बाप का माल है, राइट? उठाओ, ले जाओ, बेच दो, एक्सचेंज कर लो, कुछ भी कर लो. Now that thing I think is a dramatically changing scenario, because government has now quietly come up with a new regime effective 11th of April 2011. और काफी डिटेल से प्रोविजंस बन चुके हैं. अगर अगली बार आप किसी का डेटा उठाते हैं, तैयार हो जाइए. अगर आपको रिपोर्टिंग की गई और आप पकड़े गए तो 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना आप पर थोपा जा सकता है. ये थैंक्स टू सेक्शन 43 या 66 ऑफ द आईटी एक्ट है. वेल,
ऑफेंसिव मेल्स तो आजकल लगातार चल रही हैं, कंपनीज को ऑफेंसिव मेल्स आती हैं, लेकिन आप उसे हैंडल कैसे कर पाते हैं वो बुनियादी चैलेंज रहता है। एक केस लेना चाहूंगा। A4 साइज पेपर होता है, आप सबको मैं सर्कुलेट करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब अपनी मातृभाषा में जितनी गालियां आती हों उस कागज के ऊपर लिख दीजिए, जितनी भी। कुछ लोग आधा पेज भरेंगे, कुछ लोग पूरा पेज भर देंगे, किसी को कंटिन्यूएशन शीट की जरूरत होगी। सेकंड कंटिन्यूएशन शीट थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक मेल आई जिसमें 15 A4 साइज पेजेस की हिंदी गालीज थी, एक भी गाली रिपीट नहीं थी, जो टारगेट की गई एमडी को लेकर। एमडी टेक सेवी नहीं थे, उन्होंने सोचा चलिए भूल जाते हैं। भूल की उन्होंने, बिकॉज हर 2-2 महीने बाद इस तरह की मेल आती रही। 6 महीनों के दरमियान 90 पेजेस ऑफ लिटरेचर आया, 90 पेजेस ऑफ हिंदी गालीज, नॉट अ सिंगल गाली रिपीटेड। एंड व्हेन वी वेंट टू द पुलिस, वी couldn't get it registered because we got a unique request. इसकी 5-6 कॉपियां भिजवा देना इंटरनल सर्कुलेशन के लिए। So they could not fathom the necessity of really registering it. We had to go to court and get an FIR registered. So bottom line is things are happening all across. There was this phone company, उसके एम्प्लॉई ने अपने पर्सनल ब्लॉग में लिखा, साहब हमारी कंपनी का ये नया मॉडल आने वाला है, बहुत बेकार मॉडल है, उसमें फला 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 डिफेक्ट है। उसने लिख तो दिया अपना ब्लॉग, भूल गया कि वो उस कंपनी में काम करता था। कंपनी ने ना केवल उसको बर्खास्त किया, उसके बरखिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फाइनली कुछ देर बाद मामला सेटल हुआ। मीनवाइल ब्लॉग को रिमूव करना पड़ गया। ट्विटर पे तो खैर बहुत जबरदस्त लोगों को अपनी मृत्यु की खबर मिलती है। माधुरी दीक्षित को पता लगा कि वो उनकी मृत्यु हो गई है। अंशुमन खुराना, विकी डोनर के अभिनेता को पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है स्विट्जरलैंड पे शूटिंग करते हुए। इस तरह के रूमर्स लगातार चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप इस रूमर को इधर जनरेट करते हैं या किसी को भेजते हैं तो थोड़े से सावधान हो जाइए। अगर आप पकड़े जाएंगे तो 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, भाई हम तो सिर्फ रीट्वीट कर रहे थे, रीट्वीट करने से क्या हो सकता है? इंग्लैंड में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बरखिलाफ किसी एक बंदे ने ट्वीट किया कि साहब ये चाइल्ड अब्यूज करते हैं। उस ट्वीट को 10,000 लोगों ने रीट्वीट कर दिया। एमपी साहब को बहुत गुस्सा आया। एमपी साहब ने मुकदमे दर्ज कर दिए 10,000 लोगों के विरुद्ध कि जिन जिन लोगों ने ट्वीट किया उन वो सब लायबल हैं, जो फैक्चुअली करेक्ट पोजीशन है। लेकिन उन्होंने एक वे आउट भी दिया कि अगर आपके फॉलोअर्स 1000 तक हैं तब आप मिनिमल सा फाइन देके इस चैरिटी को दे दीजिए, मैं आप पर मुकदमा नहीं प्रोसिक्यूट करूंगा। अगर आपके फॉलोअर्स 1000 से लेकर 10,000 तक हैं तब थोड़ा ज्यादा फाइन दे दीजिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे चैरिटी को दीजिए। लेकिन आइदर वे आई वुड वांट यू टू लर्न अ लेसन कि आप इस तरह से ट्वीट ना किया करें। सो बहुत सारी इश्यूज हैं आजकल। इफ यू लुक एट दिस सिनेरियो यू विल फाइंड दैट टुडे वी आर फाइंडिंग पीपल आर इन अ वैरायटी ऑफ problematic areas. Let me go to a specific slide that I want to show you. Okay. इन शक्लों में कॉमन क्या है? लेफ्ट में कोई पहचानता है लड़की को? इन्होंने बहुत अभी लोकप्रिय गाना गाया है, तितली तितली दिलोड़ा। चिन्मयी श्रीपदा इनका नाम है, बहुत पॉपुलर सिंगर है। ये नीचे धारुण रवि हैं, ये इंडियन हैं, यूएस गए थे पढ़ाई करने के लिए, रास्ता भूल गए। अपने रूममेट की उन्होंने कुछ तस्वीरें निकाल ली, बाथरूम में स्पाई कैमरा लगा दिया और फिर कुछ इंटरनेट पर रिलीज करने की धमकी दी। भूल गए कि शायद रूममेट इसको हैंडल कर सके या ना कर सके। रूममेट ने अपनी खुदकुशी कर ली। लाइफ इम्प्रिजनमेंट अभी फिलहाल सर्व कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रकाश बैंड, 3 गर्ल्स बैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, इनको लाइफ थ्रेट्स आनी शुरू हुई जम्मू एंड कश्मीर में। साहब ऐसा है, अगर आपने परफॉर्म